Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Lasit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss second part of digital literacy. In this part, I will discuss some e-learning platforms. Already in first part, already I have covered. Now, other e-learning platforms I will discuss in this part. In this part also, I will discuss 15 MCQs. So you can get information about some important e-learning government platforms and 15 MCQs. And you know that this video is specially for UPSC principal and vice principal exams. So my friends, till the end listen the video, you get complete information, and definitely the session would be interesting one. Till end listen the video. ठीक है? और you see my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe, like and share my channel. So if you see my video, please do not forget to click on subscribe button, and also you share my channel to your friends so you can get notification for my upcoming videos. Please my friends, please subscribe my channel. Definitely you can get quality videos. So join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number. It is 8327782034. So now I am going to discuss digital literacy second part. In this case, I will discuss, you see, the NIShtha. It is National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द एक्चुअली टीचर्स ट्रेनिंग. इट मीन्स ट्रेनिंग फॉर द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट. क्लियर? सो उसमें मैं पूरा डिस्कस करूँगा. निष्ठा का फीचर्स कब लॉन्च हुआ था अभी डिटेल्स देखेंगे. तो फर्स्ट देख लीजिए, रिलेटेड टू द लॉन्च ऑन व्हेन एक्चुअली this e-learning platform was launched 21st August 2019. Okay, you just remember the year is very important one. Launched by Ministry of Education, Government of India, implemented by समग्र शिक्षा अभियान. याद रखिए 3 things बहुत important. कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, और इसको कौन इम्प्लीमेंट किया था. इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स aiming to build the capacity of about 42 lakh teachers and school heads. ठीक है. तो वेराइटीज ऑफ एरियाज में एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से एक्चुअली जो स्कूल हेड्स है, प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो रहा है. अभी आप जानते हो कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिनिमम 50 आवर्स एक्चुअली ड्यूरिंग ए ईयर. 50 आवर्स एक्चुअली यू मस्ट कंप्लीट एक्चुअली both online and offline training, right? Maybe only online or maybe only offline or both, right? So ये सबसे वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ठीक है, फॉर द होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, राइट. नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली जो उसका वर्सन है, 4 वर्सन है. जो निष्ठा 1 है उसमें एलिमेंटरी रिलेटेड में क्लास 1 to 8 प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, ओके, ऑफ एलिमेंटरी स्कूल्स, they are getting training, they are getting online training facilities in different areas. Focus area pedagogy, learning outcomes, inclusive education, assessment and school leadership. ये जो एरिया दिया गया है, इसी एरिया में एलिमेंटरी स्कूल्स का जो प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, दे आर गेटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज. और लॉन्च हुआ था 21 अगस्त 2019, फेस टू फेस ऑनलाइन फ्रॉम 6 अक्टूबर 2020 ऑन दीक्षा पोर्टल, राइट. निष्ठा 2 में सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स 9 to 12 प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, दे आर गेटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, NEP 2020, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी असेसमेंट. ये जो लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2021. निष्ठा 3
FLN के ऊपर एम्फसाइज किया है, प्री प्राइमरी टू क्लास 5 टीचर्स एंड स्कूल हेड्स, प्री प्राइमरी टू क्लास 5 टीचर्स एंड स्कूल हेड्स, बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर ओके ट्रेनिंग मिल रहा है प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अंडर निपुण भारत मिशन। ये जो लॉन्च हुआ था 7 सितंबर 2021। निष्ठा 4 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC के ऊपर टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, डाइट और SCRT फैकल्टी, BRC और CRC कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, राइट। डाइट में जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ओके SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनका जो कोऑर्डिनेटर्स है, ऑफिशियल्स है, उनको ट्रेनिंग मिल रहा है। और टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो टीचर्स एक्चुअली जो बच्चों को एक्चुअली हैंडल कर रहे हैं अंडर ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओके। तो निष्ठा 4, तो 4 वर्जन से प्ले बेस्ड लर्निंग, निष्ठा 4 में प्ले बेस्ड लर्निंग, फाउंडेशनल स्टेज करिकुलम, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूल रेडीनेस, इसी रिलेटेड में फोकस एरियाज है जो निष्ठा प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इंट्रोड्यूस्ड एज द ECC फेज फॉलोइंग निष्ठा 3। तो ये 4 वर्जन्स को आपको याद रखना है, ओके। वर्जन 1 में क्या है, वर्जन 2 में क्या है, वर्जन 3 में क्या है, वर्जन 4 में क्या है, और किस एरिया के ऊपर एक्चुअली ट्रेनिंग मिल रहा है, ओके। और कब कब ये सब लॉन्च हुआ था उसको आप देख लीजिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेटेड में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट वन, की फीचर्स ऑफ निष्ठा। फर्स्ट वन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, improves the professional competence of teachers and school heads, ओके। अभी आप देखा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर एक्चुअली एम्फसाइज किया जा रहा है। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, मीन्स हाउ टू डिफाइन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, हाउ कैन यू डिफाइन। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग फोकस्ड ऑन व्हाट ए स्टूडेंट कैन एक्चुअली डू, क्या स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है, नॉट जस्ट व्हाट दे हैव स्टडीड, ठीक है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, आप एक कंटेंट को एक्सप्लेन किया, पहले क्या था, इन ट्रेडिशनल टाइम द टीचर सिंपली दे गो टू द क्लास and what type of things given in the book with some examples they explain these things, then after that actually they do not think about whether the students actually they understood the concept properly or not, whether the children actually they clarify the concepts to others properly or not, whether they related to the scientific facts actually the students actually they can demonstrate the content properly to others or not। तो बट अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो ट्रेनिंग अभी टीचर्स को मिल रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, अभी तो कंसेप्चुअलाइज्ड एक्चुअली लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। आप एक कॉन्सेप्ट को विथ लाइव एग्जांपल्स, आपको रियलिस्टिक होना चाहिए क्लासरूम में। आप जब एक लेसन डिलीवर कर रहे हो तो टीचर्स को विथ क्लैरिटी, विथ प्रैग्मेटिक एग्जांपल, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओके, आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अभी ये जो ट्रेनिंग मिल रहा है तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर्स, ओके। तो टीचर्स वो जानते हैं कि हमको क्या करना है क्लासरूम में। तो जब एक कंटेंट आप एक्सप्लेन करने के बाद द चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रॉपरली एंड चाइल्ड क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट टू अदर्स। यदि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है द चाइल्ड कैन डेमोन्स्ट्रेट इट, उसी कंटेंट को यूज करके द चाइल्ड कैन मेक एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके, द चाइल्ड इज एबल टू मेक कंपैरिजन। तो इसमें क्या है, जब चाइल्ड कंटेंट के ऊपर, जब उसका ऊपर एकदम परफेक्ट नॉलेज होगा, जब एक टीचर लेसन डिलीवर करेगा विथ एक्चुअली सम लाइव एग्जांपल्स, जो बोलते हैं जैसे आप डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड यूज कर रहे हो, एनिमेशन, कुछ ऐसे इमेज आप शो कर दो, ठीक है, तब बच्चों को एक्चुअली क्लियर एक्चुअली दे मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कि सब सिमुलेशन है, सम सिमुलेशंस एक्चुअली, सम डिजाइंस, सम 3D पिक्चर्स विथ रियल एग्जांपल में आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो इंप्रूव्स द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर्स एंड स्कूल हेड्स, फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स,
helps teachers achieve better student learning outcomes through competency based education. ओके, जो हम बोलते हैं जो लर्निंग आउटकम्स, क्या है लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स आर क्लियर स्टेटमेंट्स describing what learners should know, understand or be able to do after completing a lesson, right? और कोर्स और प्रोग्राम. तो आप लर्निंग आउटकम्स क्या है? जब कंटेंट आप डिलीवर करने के बाद, एक कॉन्सेप्ट को आप क्लैरिफाई करने के बाद क्लासरूम में, तब क्या है, द स्टूडेंट, द लर्नर्स एक्चुअली दे शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, दे मस्ट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रॉपरली. देन क्या होगा ना, वो एक्चुअली उसी को अदर को क्लैरिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली आप बोल दिया कि ये फोटोसिंथेसिस है, आपको सनलाइट चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आपको वाटर, आपको क्लोरोफिल, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स है, उसी में ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, तो वही प्लांट्स को फूड मिलेगा. तो ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जब आप एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के बाद आप स्टूडेंट्स को पूछ रहे हो, वो विथ क्लैरिटी, विथ डेमोन्स्ट्रेशन, वो चाइल्ड इज एबल टू शो टू अदर्स विथ डेमोन्स्ट्रेशन, और द चाइल्ड ऑल्सो मेक अदर एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस. तो ये सब चीज जो है लर्निंग आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी इसके ऊपर एक्चुअली जो निष्ठा प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग मिल रहा है. लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल एंड चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स. जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, यू नो, नाउ इन केवीएस, एनवीएस, ये हमारे जो सेंट्रल स्कूल्स है, और इन ऑलमोस्ट इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो क्लब एक्टिविटीज आर देयर डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर. ओके, उसमें आपका डिफरेंट क्लब्स, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर क्लब रहेगा, और अदर रिलेटेड में आपका जैसे बेसिकली एडवेंचर रिलेटेड क्लब है. सो अराउंड 18 क्लब्स है, तो उसमें एक्टिविटीज होगा, और एक्टिविटीज मीन्स विथ एक्चुअली रियल एक्टिविटीज. ओके, द स्टूडेंट्स एक्चुअली वो कुछ कॉन्सेप्ट को जब वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो कॉन्सेप्ट को एक्चुअली कुछ सम रियल थिंग्स के साथ एक्चुअली कनेक्ट करके वो एक्टिविटी प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, एक्सपीरियंशियल हैंड्स ऑन लर्निंग. ओके, जस्ट लर्निंग बाय एक्सपीरियंस. जो बैगलेस डेज है अभी चल रहा है स्कूल्स में, बैगलेस डेज अंडर पीएम श्री, उसमें हम जो लोकल कारपेंटर्स है कि लोकल टेक्नीशियन है, तो उनको हम बुलाते हैं, वो बच्चों को एक्चुअली फॉर 10 days एक्चुअली वो बच्चों को सिखाते हैं. द चाइल्ड इंस्टेंटली दे लर्न, एंड देन द चाइल्ड एक्चुअली आफ्टर लर्निंग, the child actually it means by using some local materials, the child is able to make some dolls, keys, any other some suppose चाहे wood, bamboos, जो जूट, इसको यूज करके चाइल्ड अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स बना रहे हैं, जो इसको हम होम डेकोरेशन, क्लासरूम डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं. तो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, इसके ऊपर एक्चुअली निष्ठा प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग मिल रहा है प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स. इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्लूसिव एजुकेशन इट मीन्स एक 2-3 चीज में इसमें रिलेट करना चाहता हूं इंक्लूसिव एजुकेशन में. एक है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड डिसेबल चाइल्ड. अनदर वन, हम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखेंगे. ऑल टीचर्स मस्ट बी ट्रीटेड, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम थर्ड थिंग इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ये नहीं देखेंगे द चाइल्ड बिलोंग्स टू एक्चुअली व्हिच एरिया, कि वो एडवांस एरिया में है कि बैकवर्ड एरिया में है. तो ये सब चीज इंक्लूसिव, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड डिसेबल चाइल्ड. ओके, कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द चिल्ड्रेन एक्चुअली द चाइल्ड बिलोंग्स टू एडवांस एरिया की बैकवर्ड एरिया. ओके, तो इसके ऊपर ट्रेनिंग मिल रहा है. competency based learning and assessment. Okay, focuses on competency based learning and school based assessment. तो competency based learning में आपको टीचर्स को कैसे competency based लेसन प्लान, आपको कैसे लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको कैसे लेसन डिलीवर करना है, किस तरीके का टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपको मेंटेन करना है, जो आपका जब आप लेसन डिलीवरी कर रहे हो
So each and every child actually they must understand the concept properly, so that in future actually by relating this concept they can make different type of experiment, they demonstrate to others, okay, they involve in different activities and show to others, okay. तो इस रिलेटेड में ट्रेनिंग मिल रहा है। आईसीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कैसे द टीचर्स दे शुड अडॉप्ट एंड एक्यूस्टम विथ न्यू टाइप ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी, so that it means a digital technology, so that they can it means transfer they involve in teaching learning transaction by using ICT. So encourages the use of digital tools, ICT and artificial intelligence in classrooms, right? ये भी इसी रिलेटेड में ट्रेनिंग मिल रहा है निष्ठा प्लेटफॉर्म में। स्कूल सेफ्टी एंड वेलबींग, okay, safety security for the children is very important one, and health is also very important one. So safety and security and health of the child, okay, so इस related में भी ट्रेनिंग मिल रहा है, okay, प्रिंस जो हेड ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स को कवर स्कूल सेफ्टी, हेल्थ, योगा, काउंसलिंग एंड सोशियो इमोशनल लर्निंग, इस रिलेटेड में ट्रेनिंग मिल रहा है। लीडरशिप डेवलपमेंट, स्ट्रेंथेन्स द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ स्कूल हेड्स, ठीक है। जो आपका लीडर है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द प्रिंसिपल, ओके, सो प्रिंसिपल्स का विजन क्या होना चाहिए, ओके, तो कैसे वो आई मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा रखेगा स्टाफ के साथ, राइट, तो उसका जो लीडरशिप के अंडर कैसे स्कूल ग्रो करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मैनेजमेंट स्किल्स है, हाउ टू मैनेज द स्कूल, ओके, रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके, तो ये सब चीज के ऊपर ट्रेनिंग मिल रहा है। ऑनलाइन लर्निंग सपोर्ट, ट्रेनिंग इज सपोर्टेड थ्रू द दीक्षा प्लेटफॉर्म एंड एन LMS और मोबाइल ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। थोड़ा LMS के ऊपर बता देता हूँ। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक्चुअली LMS के ऊपर आप थोड़ा सुन लीजिए, इट इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज टू मैनेज, डिलीवर, मॉनिटर एंड एवेलुएट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको डिलीवर किया जाएगा, उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, उसको कैसे इवेलुएट किया जाएगा, ये LMS का है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, कैसे हाउ टू अपलोड द लर्निंग मटेरियल्स, ओके। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से हमको पता चलता है कि प्लेटफॉर्म से हाउ टू अपलोड द लर्निंग मटेरियल्स, हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू ट्रैक द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस, कि हाउ टू कंडक्ट क्विजेस, हाउ टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओके, हाउ टू प्रोवाइड ग्रेड्स एंड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन, ओके, हाउ टू फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स थ्रू ऑनलाइन। तो ये LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो जो लर्निंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये जो लर्निंग एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाएगा और आप कैसे लेसन डिलीवर करेंगे, आप कैसे ऑनलाइन क्लास में, आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कैसे लेसन डिलीवर करोगे, ओके, उसको मॉनिटरिंग टीचर्स ले रहे हैं, सपोज ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं, जो हेड है, प्रिंसिपल है, वो कैसे मॉनिटर करेगा, और उसके बाद थ्रू ऑनलाइन आप कैसे इवेलुएट करोगे, थ्रू ऑनलाइन, ओके, आप कैसे स्टूडेंट्स को इवेलुएट करोगे कि जो टीचर्स एक्चुअली पढ़ा रहे हैं उनका टीचिंग को कैसे इवेलुएट करोगे, तो ये LMS का काम है, ठीक है। और इसमें इसके ऊपर जो ऑनलाइन लर्निंग सपोर्ट, तो ये सब है डिफरेंट फीचर्स ऑफ निष्ठा। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग, ओके, फॉर द इट मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फॉर देयर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ओके, डिफरेंट एरियाज, नॉट ओनली academics है, इट मीन्स रिलेटेड टू द सपोज हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन है, काउंसलिंग रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, योगा रिलेटेड है, तो मेनी एरियाज, ये सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, एनवायरमेंट रिलेटेड है, सो डिफरेंट एरियाज, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, डिफरेंट एरियाज एक्चुअली द हेड ऑफ द प्रिंसिपल एंड टीचर्स गेटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज थ्रू द निष्ठा प्लेटफॉर्म, ओके।
नेक्स्ट वन हम एनपीटेल के ऊपर एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, हायर एजुकेशन के लिए। ओके, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है, अच्छा लॉन्च कब हुआ था? 2003 में। अच्छा, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, याद रखिए जो ई लर्निंग गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ये जो एनपीटेल जो प्लेटफॉर्म है वो फास्ट है, 2003 में लॉन्च हुआ था। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि व्हिच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम एक्चुअली व्हिच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्चुअली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज एनपीटेल, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेवलप्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ओके, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च हुआ था, इनिशिएटेड बाय, इट मीन्स व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट एंड हु डेवलप्ड एंड डिजाइन एनपीटेल, राइट। नेक्स्ट वन ब्रीफ फीचर्स हम देखेंगे एनपीटेल के ऊपर। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस, ओके, ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेस इन इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, लॉ एटसेट्रा अदर डिसिप्लिन्स। सो बेसिकली हायर स्टडीज के लिए, ओके, इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड अदर डिसिप्लिन्स के ऊपर एनपीटेल एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। कंटेंट बहुत हाईली क्वालिटेटिव है। कोर्सेज आर डिजाइन्ड एंड टॉट बाय द फैकल्टी फ्रॉम द आईआईटीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, जो कोर्सेज का डिजाइन है और बेसिकली जो आईआईटी प्रोफेसर्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ओके, उसका जो प्रोफेसर्स है वो एक्चुअली कोर्स को डिजाइन करते हैं और ऑल्सो दे टॉट टू द इट मीन्स स्टूडेंट्स, ओके, in through online platform. Self-paced learning, learners can study anytime, anywhere using video lectures, reading materials and assignments. Okay, कोई भी टाइम में लर्नर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, रीडिंग मटेरियल्स है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, असाइनमेंट्स है, ठीक है, और सर्टिफिकेशन भी है। लर्नर्स कैन अर्न सर्टिफिकेट्स बाय कंप्लीटिंग कोर्स एंड पासिंग ए प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन। कुछ जो एनपीटेल है वो एग्जाम भी कंडक्ट करता है, तो प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी का आप जैसे जो कोर्स है रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग है कि रिलेटेड टू द साइंस है, उसी रिलेटेड में आप जैसे कुछ क्रेडिट आप उस सपोज जो टोटल क्रेडिट आपको इतना क्रेडिट लेना है सेमिस्टर एग्जामिनेशन, कुछ क्रेडिट एक्चुअली जो एनपीटेल जो प्रोक्टर्ड एग्जाम करके देता है उस वो भी अप्रूव करता है यूनिवर्सिटीज। सो लर्नर्स कैन अर्न सर्टिफिकेट्स बाय कंप्लीटिंग द कोर्स एंड पासिंग ए प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन। क्रेडिट ट्रांसफर होता है, जैसे मैं बताया, सपोज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसका टोटल क्रेडिट है 120, मेरा इमेजिनरी एग्जाम्पल में, सपोज वो 40 क्रेडिट कंप्लीट करता है एनपीटेल में, जो प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन एनपीटेल कंडक्ट करता है उसमें 40 क्रेडिट, ओके, ये 40 क्रेडिट ट्रांसफर होगा, तो उसको यूनिवर्सिटी में कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं रिलेटेड बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग, तो वो बीटेक कोर्स कर रहा है, तो टोटल 120 क्रेडिट से 40 क्रेडिट सपोज एनपीटेल दे दिया, तो 80 क्रेडिट वो फिजिकल जो एग्जामिनेशन देगा कॉलेज में वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांसफर ये भी फैसिलिटीज है। मेनी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट एनपीटेल कोर्स क्रेडिट्स एंड अंडर एप्लीकेबल रेगुलेशंस, राइट। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री रिलेटेड रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड्स कोर्सेस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड में ये सब आ जाता है, तो ये सब रिलेटेड इट मीन्स ऑनलाइन कोर्सेस ऑल्सो प्रोवाइड बाय द एनपीटेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ये सब, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, इसका भी ऑनलाइन कोर्सेस एक्चुअली प्रोवाइड करता है एनपीटेल। accessible nationwide courses are available online to students, teachers, professionals and lifelong learners across India। ठीक है, नेशन वाइड ये ओनली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है,
टीचर्स के लिए मटेरियल्स है, प्रोफेशनल लोगों के लिए मटेरियल्स है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एक्चुअली अक्रॉस इंडिया मटेरियल्स अवेलेबल actually in NPTEL platform, right? Massive open online courses functions as one of the India's largest massive open online courses platforms for higher education. Okay, तो massive open online courses आप जानते हो इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ है, मैनेजमेंट है, तो उसी रिलेटेड में मेनी कोर्सेस एक्चुअली डिजाइन एंड डेवलप बाय द NPTEL. ओके, तो ठीक है, तो ये सब चीज को आपको रिमेंबर करना है, राइट? नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. नेशनल डिजिटल जो NDLI उसके ऊपर हम देखेंगे, ठीक है? अच्छा, कब NDLI लॉन्च हुआ था? लॉन्च्ड जून 2018 में लॉन्च हुआ था. अच्छा, डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर. ओके, इसको डेवलप किया था, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, बहुत मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. तो ये तहत एक्चुअली जो लॉन्च हुआ था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 2018 में, उसको IIT खड़गपुर ने उसको डेवलप किया था बाय द सपोर्ट ऑफ MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मगर मिशन जो था वो ये मिशन था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, NMEICT, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो ये कौन सा मिशन था जिसके अंडर में एक्चुअली जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन, ब्रीफ फीचर्स हम देखेंगे NDLI का. सिंगल डिजिटल रिपोजिटरी. तो इसमें एक चीज देखिए कि ये जो रिपोजिटरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोजिटरी? एक सेंट्रल प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन, डाटा, डॉक्यूमेंट्स and other resources are stored, organized and made available, okay, for final use. तो जो रिपोजिटरी जो many informations, many datas, many documents, okay, are stored and organized, okay, and all then available for users. okay, तो ये एक सिंगल डिजिटल रिपोजिटरी है, provides access to millions of digital learning resources through one platform. Okay, resources for all levels. All levels means schools, undergraduates, postgraduates, research, vocational and lifelong learning. सबके लिए resources है. Multiple types of content, उसमें आपको मिल जाएगा books, journals, articles, thesis, dissertations, videos, lecture notes, question papers, सिमुलेशंस एंड ऑडियो बुक्स. ठीक है, ये सब आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट. आप ये मत समझो ओनली डिजिटल बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, थेसिस, डिसर्टेशंस, वीडियोस, लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स. ऑडियो बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है? और सिमुलेशंस, ओके, कुछ इट मीन्स रियलिस्टिक थिंग आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. अच्छा, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लर्निंग मटेरियल्स आर अवेलेबल इन मेनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस. NDLI में जो आपको मटेरियल्स मिलेगा वो डिफरेंट इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में मिलेगा. फ्री एक्सेस, मोस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेस आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. मोस्ट बोला है, और अदरवाइज जो रिसोर्सेस अवेलेबल होता है वो सब्सिडाइज्ड रेट, बहुत कम रेट में मिल जाता है. एडवांस्ड सर्च, यूजर्स कैन सर्च रिसोर्सेस बाय सब्जेक्ट, ऑथर, लैंग्वेज, एजुकेशनल लेवल, कंटेंट टाइप एंड सोर्स. इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, चाहे सब्जेक्ट के नाम पे, कि नेम ऑफ द ऑथर, की पर्टिकुलर लैंग्वेज,
कि एजुकेशनल क्या लेवल है, कि कंटेंट टाइप क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। पर्सनलाइज लर्निंग, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और सेव कर सकते हो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, और बिल्ड कलेक्शंस, डिफरेंट कलेक्शंस आप कलेक्ट कर सकते हो एंड रिसीव रिकमेंडेशंस। ओके, तो पर्सनलाइज लर्निंग, आप अकाउंट ओपन कर दो, इसमें जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए आप सेव करो और डिफरेंट कलेक्शंस आप बिल्ड कर सकते हो और आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो। ओके, किस एरिया में, सपोज किस कंटेंट के ऊपर आपको सपोज चाहिए, किस कंटेंट रिलेटेड में, उसका रिकमेंडेशंस मिल जाएगा। सपोर्ट्स ऑनलाइन लर्निंग, accessible एनी टाइम एंड एनी वेयर थ्रू वेब एंड मोबाइल डिवाइसेस में आप उसको access कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अनदर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इट इज नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, NROER। ये स्कूल एजुकेशन बेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, NROER के ऊपर हम देखेंगे कब लॉन्च हुआ था। लॉन्च्ड 2013। ओके, डेवलप्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अंडर NCERT। ओके, CIET एक्चुअली इसको डेवलप किया था अंडर NCERT, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब लॉन्च हुआ था? 2013 में डेवलप किया था CIET अंडर NCERT, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इसमें ब्रीफ फीचर्स हम देखेंगे। फर्स्ट वन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस प्रोवाइड्स फ्री एंड ओपनली लाइसेंस्ड एजुकेशनल रिसोर्सेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रिसोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन कवर्स क्लासेस 1 to 12 अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स अलाइंड विद द NCERT करिकुलम। जो भी NCERT करिकुलम के हिसाब से वो क्लासेस 1 to क्लासेस 12, इसी ये रिलेटेड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब रिसोर्सेस अवेलेबल है। ओके, नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। मल्टीपल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स को मिल जाएगा, ई बुक्स मिलेगा, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, एनिमेशंस, सिमुलेशंस एंड इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये सब आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स आपको इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, मल्टीलिंगुअल कंटेंट। अच्छा, लैंग्वेज रिलेटेड हम देखेंगे। मल्टी लैंग्वेज में रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। टीचर एंड स्टूडेंट सपोर्ट, दोनों को सपोर्ट करता है। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो इट मीन्स NROER में, तो उसमें टीचर को सपोर्ट करता है और स्टूडेंट को भी सपोर्ट करता है। हेल्प्स टीचर्स प्रिपेयर लेसन प्लान्स एंड टीचिंग मटेरियल्स while supporting students in self learning। ओके, तो इट मीन्स कैसे क्या टीचर्स लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से वो टीचिंग मटेरियल्स प्रिपेयर करेंगे जो उनको इट मीन्स स्टूडेंट्स का सेल्फ लर्निंग में एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली हेल्प्स टीचर्स प्रिपेयर लेसन प्लान्स एंड टीचिंग मटेरियल्स while supporting students in self learning। कोलाबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, कोलाबोरेशन है, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स कैन क्रिएट, शेयर एंड कंट्रीब्यूट एजुकेशनल रिसोर्सेज। जो भी यहाँ पर जो रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन टीचर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशन वो कंट्रीब्यूट करता है, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स है वो भी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, कैन क्रिएट, शेयर एंड कंट्रीब्यूट एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। क्लास 1 to क्लास 12 का जो NCERT जो करिकुला है उसी रिलेटेड में रिसोर्सेस इसमें अवेलेबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलाबोरेटिव प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि उसमें वो कंट्रीब्यूट एक्चुअली रिसोर्सेस टू द NROER। तो उसमें टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिशियन, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, वो एक्चुअली उनका जो रिसोर्सेस है, जो वो रिसोर्सेस बनाए हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और वो रिसोर्सेस अवेलेबल होता है NROER प्लेटफॉर्म में और वो यूजफुल होता है। ओके, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अच्छा, करिकुलम अलाइंड कंटेंट, इट इज मैप टू NCERT टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग आउटकम्स, मेकिंग इज यूजफुल फॉर क्लासरूम टीचिंग।
free online access, resources can be accessed anytime anywhere through the internet without cost, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट थोड़ा विद्वान के ऊपर देखेंगे, ठीक है। विद्वान लॉन्च्ड इन 2012, ओके। अच्छा, डेवलप्ड मैनेज्ड बाय इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इसको याद रखिए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, डेवलप्ड एंड इट मीन्स मैनेज द विद्वान पोर्टल। अच्छा, इस पोर्टल में क्या ये हमको क्या बेनिफिट देता है? डाटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स इन इंडिया, एक डाटा देता है कि ये सब रिसर्चर्स, उनका डिटेल्स प्रोफाइल देता है, ओके। जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स है उनका डिटेल्स प्रोफाइल देता है, और वो कहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, क्या क्या उनका थेसिस है, क्या क्या उनका रिसोर्सेस है, ओके, डिटेल्स ये देता है विद्वान। इट प्रोवाइड्स रिसर्चर प्रोफाइल, जो रिसर्चर्स है उनका प्रोफाइल्स देता है, उनका पब्लिकेशंस, उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशंस, ओके। तो हेल्प्स आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, रिव्यूअर्स, गाइड्स एंड कोलैबोरेटर्स, ठीक है। तो इस रिलेटेड में आप देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पोर्टल है ये एक डाटाबेस क्रिएट करता है। तो उसमें आपको वेराइटीज ऑफ रिसर्चर्स, उनका पब्लिकेशंस, उनका रिसर्चर्स का प्रोफाइल्स मिल जाएगा, उनका पब्लिकेशंस मिल जाएगा, और रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर डाटा मिल जाएगा। तो स्किल्स, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो एक सपोज सिनोप्सिस है कि थेसिस है, बनाने के लिए आपका क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशंस क्या है? जैसे आप कोई इंस्टीट्यूशन में केवीएस में काम कर रहे हैं तो आपका अफिलिएशन वही है, आप एनवीएस में काम कर रहे हैं, आपका अफिलिएशन एनवीएस के साथ है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशंस हेल्प्स आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो रिव्यूअर है, जो गाइड्स है, कोलैबोरेटर्स है। तो ये डिटेल्स डाटा देता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी रिसर्चर का डाटा चाहिए, उसका पब्लिकेशन रिलेटेड नॉलेज चाहिए, उसका प्रोफाइल्स चाहिए, और आपको इट मीन्स क्या क्या स्किल्स चाहिए। सपोज आप एक सपोज न्यू कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो क्या क्या स्किल्स चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशंस, ओके, हेल्प्स आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, रिव्यूअर्स, गाइड्स एंड कोलैबोरेटर्स। तो ये एक्चुअली विद्वान जो प्लेटफॉर्म है उस रिलेटेड में मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता दिया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका सपोज ये क्वेश्चन आता है कि ये जो पोर्टल है ये किसके लिए यूजफुल है। इसमें यूजफुल ये है कि आप इमीडिएटली जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स है, रिसर्चर्स है, उनका प्रोफाइल मिल जाएगा, उनका पब्लिकेशंस मिल जाएगा, और आपको जैसे आपको सपोज कोई बुक पब्लिकेशन करने से पहले, कोई सिनोप्सिस बनाने से पहले, कोई प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, सपोज यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ए थेसिस, क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो ये सब डाटा इसमें मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आप सर्च कर सकते हो, रिव्यूअर्स, गाइड्स एंड कोलैबोरेटर्स को इसमें आप सर्च करके डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है शोध गंगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, शोध गंगा। अच्छा, इसमें आपको देख लीजिए, इसमें मैं एक टेबल फॉर्म में बता दिया। पर्टिकुलर शोध गंगा जो है मीनिंग है, शोध मीन्स रिसर्च और गंगा मीन्स सिंबलाइजेस ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थेसिस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशंस, ईटीडी, ठीक है। ये क्या है? ये जो शोध गंगा है, जो थेसिस है, ओके, जो पीएचडी स्कॉलर्स का जो थेसिस है, जो डिसर्टेशंस है, उसको वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो जो लोग सब रिसर्च कर रहे हैं तो उनको ये डिजिटल फॉर्म में एक्चुअली थेसिस मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मेन वही है, शोध मीन्स रिसर्च एंड गंगा सिंबलाइजेस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नॉलेज। ये लॉन्च हुआ था 2009 और डेवलप्ड एंड मैनेज बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर,
भाई इनक्लिबनेट, ओके, फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इसमें मेन है जो पर्पज है शोध गंगा का कि टू प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू पीएचडी थेसिस सबमिटेड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड प्रिजर्व देम डिजिटली। जो भी थेसिस एक्चुअली इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो सबमिट करते हैं पीएचडी स्कॉलर्स, उसको प्रिजर्व किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, ओके, उसको प्रिजर्व किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। और उसको जो अदर स्कॉलर्स है जो रिसर्च कर रहे हैं, ओके, दोज आर डूइंग ऑनगोइंग रिसर्च एक्चुअली, जस्ट दे इमिटेट इट, दे फॉलो इट, ओके, जो डिजिटल फॉर्म में जो थेसिस है जो शोध गंगा प्लेटफॉर्म में, तो उसको वो फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफली मैं बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट वन, और एक है शोध गंगोत्री। वो शोध गंगा, ये शोध गंगोत्री, उसके ऊपर हम देखेंगे पर्टिकुलर डिटेल्स के ऊपर हम जाएंगे। नेम है शोध गंगोत्री, एक्चुअली लॉन्च्ड इन 2013, अगेन डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय इनक्लिबनेट सेंटर, ओके, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। मगर इसका पर्पज है कि टू होस्ट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू अप्रूव्ड पीएचडी रिसर्च प्रपोजल्स। ये सिनोप्सिस, ये थेसिस नहीं है, ये जो सिनोप्सिस है, आप जैसे जो पीएचडी स्कॉलर्स है वो फर्स्ट जो रिसर्च प्रपोजल होता है, जो सिनोप्सिस होता है, वो फर्स्ट उसको सबमिट करेंगे, ओके। तो वही चीज एक्चुअली जो सिनोप्सिस सबमिट होता है, जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट होता है, वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो स्कॉलर्स एक्चुअली रिसर्च करना चाहते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं कि हाउ टू एक्चुअली प्रेजेंट द सिनोप्सिस, ठीक है। तो सिनोप्सिस में क्या है, आपको एक कॉन्साइज डॉक्यूमेंट है, ओके, सिनोप्सिस एक्चुअली ये कॉन्साइज डॉक्यूमेंट है सबमिटेड बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च। आप रिसर्च करने से पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल जमा करना है, जैसे क्या आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, जो आप स्टडी कर रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, कौन सा मेथड्स आप यूज करोगे रिसर्च करने के लिए, और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होगा। ऐसे एक रिसर्च प्रपोजल आपको जमा करना होगा। तो जो प्रपोजल्स आप जमा करते हो उसी को डिजिटल फॉर्म में शोध गंगोत्री स्टोर करके रखता है। तो वो यूजफुल होता है जो स्कॉलर्स एक्चुअली पीएचडी करना चाहते हैं, ओके, वो जाकर एक्चुअली वो डिजिटल फॉर्म में जो सिनोप्सिस एक्चुअली स्टोर है उसको वो इमिटेट करते हैं, और उस तरीके से वो रिसर्च जो उनका जो सिनोप्सिस है, जो रिसर्च प्रपोजल्स है, वो सबमिट करने में उनको इजी हो जाता है, उनको गाइडलाइंस मिल जाता है। तो जो शोध गंगोत्री है वो सिनोप्सिस को स्टोर करके रखता है, जो रिसर्च प्रपोजल्स को, मगर जो शोध गंगा है वो थेसिस को स्टोर करके रखता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ई शोध सिंधु, इलेक्ट्रॉनिक शोध सिंधु। इट वाज फॉर्म्ड इन डिसम्बर 2015 बाय इमर्जिंग 3 एग्जिस्टिंग कंसर्टियम। तो उसमें देखिए जो इसमें आप देख लीजिए, जो कंसर्टियम में क्या है, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसर्टियम, एक यूजीसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी कंसर्टियम, एनलिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। नेक्स्ट वन जो इंडेस्ट एआईसीटी है कंसर्टियम, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों का जो मर्ज होके एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, वो है ई शोध सिंधु। ये तीनों जो बोलते हैं कि जो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो एक पार्टनरशिप है। कंसोर्टियम मीन्स एक पार्टनरशिप है अमंग द इंस्टीट्यूशंस टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये जो तीनों को मर्ज करके ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट एआईसीटी। इसको अच्छे से याद रखिए, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां पर देख लीजिए शॉर्टकट फॉर्म में एक्चुअली
December 2015 it was launched, again developed and managed by InfliNet Center, Information and Library Network Center, funded by UGC. अच्छा, पर्पज जो है जो इस शोध सिंधु का, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरली रिसोर्सेस। जो स्कॉलरली रिसोर्सेस है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अफोर्डेबल प्राइस में, माने सब्सिडाइज प्राइस में, बहुत कम प्राइस में वो एक्चुअली अवेलेबल कराता है, ओके, फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ई जर्नल्स, ई बुक्स, डाटाबेसेस फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ई शोध सिंधु, राइट। नेक्स्ट शोध सुधी, और एक प्लेटफॉर्म है शोध सुधी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। जो इसमें और एक चीज मैं बता देता हूं, अच्छा इसमें देखिए शोध सुधी में शोध मीन्स रिसर्च, सुधी मीन्स प्यूरिफिकेशन। कभी कभी क्या है जो प्लागियरिज्म होता है, जो देखिए ये एक जो प्लागियरिज्म होता है उसका जो मीनिंग है सबमिटिंग समवन एल्स असाइनमेंट आज यू ओन, और कोई किसी का असाइनमेंट को सपोज और कोई असाइनमेंट बनाया है, उसको असाइनमेंट को आप सबमिट कर देते हो, और किसी का नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो, और किसका रिसर्च पेपर को पूरा आप इमिटेट करके जमा कर रहे हो, तो ये सब प्लागियरिज्म है। अब देखो अगर कोई भी बुक है उसका हॉलोग्राम है, वो बुक का कंटेंट को आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तरह है, उसका कंटेंट को आप चोरी नहीं कर सकते। तो वही है ये जो शोध सुधी है, शोध मीन्स रिसर्च, सुधी मीन्स प्यूरिफिकेशन, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल में जो स्कॉलर्स का जो पब्लिकेशन है उसको डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो पब्लिकेशन है, उनका जो रिसर्च पेपर है, तो उसको एक्चुअली कोई उसको इमिटेट नहीं कर सकता, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसी को रोकने के लिए ये प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म को बनाया गया। ठीक है, तो इज ए नेशनल प्लागियरिज्म डिटेक्शन इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन सितंबर 1, 2019। इसमें एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, जो सॉफ्टवेयर में एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर इजीली डिटेक्ट कर देगा कि ये प्लागियरिज्म, ये पर्टिकुलरली रिसर्च पेपर को ये फॉलो किया है, वो डिटेक्ट कर देगा वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी देखेंगे सॉफ्टवेयर का नेम भी है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एग्जीक्यूटेड एंड मैनेज्ड बाय द सेम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर। Okay, the program aims to enhance research quality and promote academic integrity across Indian higher educational institutions by providing centrally funded access to plagiarism। तो इसमें क्या है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी पब्लिकेशन है, जो भी रिसर्च पेपर है, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली इजीली डिटेक्ट करेगा कि कौन एक्चुअली को फॉलो कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है। तो कॉपी करोगे मीन्स वही है, कोई समवन असाइनमेंट की समवन नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, उसी को तो हम प्लेगियरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये जो शोध सुधी है, ठीक है, ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, सेंट्रली फंडेड एक्सेस टू प्लेगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, प्लेगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। जो प्लेगियरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ही डेवलप किया है। तो कोई एक्चुअली इसमें क्या होगा, जो रिसर्च पेपर्स रहेगा, कि जो भी आपका पब्लिकेशंस रहेगा, उसका इंटीग्रिटी रहेगा, ओके, यूनिवर्सिटी लेवल में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर जो है ड्रिल बिट, ये सॉफ्टवेयर है, ओके, जो अभी बताया कि पीडीएस जो प्लेगियरिज्म, ये जो पीडीएस है प्लेगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो करेंट सॉफ्टवेयर है वो ड्रिल बिट एक्सट्रीम है, यही सॉफ्टवेयर है जो इजीली डिटेक्ट करेगा कि कोई सपोज असाइनमेंट है, कि कोई रिसर्च पेपर है, कोई पब्लिकेशंस को सपोज कोई फॉलो कर रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है,
अच्छा, एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस एंड यूजर्स, एलिजिबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, deemed universities, private universities, centrally funded technical institutions, and inter university centers. Okay, authorized users, university faculty and registered research scholars, PhD, पोस्ट डॉक्टरल, JRF, SRF. ठीक है, तो ये इसका मेन काम है कि क्या है, एक प्लागियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर उसको डेवलप किया है, ठीक है, शोध सुधी ने। और वो जो सॉफ्टवेयर, जो करेंट सॉफ्टवेयर है वो ड्रिल बिट एक्सट्रीम है, तो वो प्लागियरिज्म को रोकने के लिए, ओके, प्लागियरिज्म को रोकने के लिए, उसको डिटेक्शन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो उसमें क्या होगा ना, इंटीग्रिटी मेंटेन होगा। ओके, द इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन इन द यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, अभी हम अच्छा, और एक है सशक्त, ये जो है लास्ट प्लेटफॉर्म आज का मेरा वीडियो का, जो है सशक्त पोर्टल। ओके, जो सशक्त पोर्टल है इसमें हम देखेंगे, नेम है सशक्त पोर्टल, लॉन्च्ड हुआ था 30 अक्टूबर 2006। ठीक है, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इट इज द पर्पज है, इज द गवर्नमेंट ऑफ India's one-stop education portal providing free access to digital learning resources and online educational services for school, higher and technical education. ये एक one-stop education portal है, तो free access digital learning resources and online educational resources for school, higher and technical education को provide करता है। ठीक है, तो इतना प्लेटफॉर्म था, अभी हम डिस्कस किया, थोड़ा ब्रीफली में एक्सप्लेन किया, और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एक्सप्लिसिटली टारगेटेड अंडर निष्ठा 4? में डिस्कस किया था, जो निष्ठा 4 है वो ECCE के ऊपर है, जैसे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो ECCE में, ठीक है, इसमें जो टीचर्स एक्चुअली बच्चों को एक्चुअली ग्रूमिंग करते हैं उनके लिए है, और जो SCRT, डाइट, और जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, उनका जो ऑफिशियल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंगनबाड़ी वर्कर्स, इन्हीं लोगों को एक्चुअली ट्रेनिंग मिलता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग निष्ठा पोर्टल में। ये निष्ठा 4 है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which initiative is primarily designed as an integrated teacher training program to improve learning outcomes at the elementary level? Elementary level आप निष्ठा का, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप निष्ठा का 0.1 देख लीजिए, जो एलिमेंटरी स्कूल्स का स्टैंडर्ड 1 to 8 जो प्रिंसिपल्स है, जो टीचर्स है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, लर्निंग आउटकम्स, पेडागोजी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, उसी रिलेटेड में ट्रेनिंग मिलता है। तो ये निष्ठा जो है वर्सन है, सॉरी 1.0 वर्सन है, 1.0 वर्सन है निष्ठा का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंटेस्ट ऑफ रिसर्च रिपोजिटोरीज, हाउ डज शोध गंगोत्री डिफर फ्रॉम शोध गंगा? देखिए, शोध गंगोत्री जो है वो सिनोप्सिस को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, मगर शोध गंगा वो थेसिस को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। तो सिनोप्सिस क्या है? रिसर्च प्रपोजल है। ओके, आप जब रिसर्च कर रहे हो, फर्स्ट आपको रिसर्च प्रपोजल जमा करना है, वही रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है ये शोध गंगोत्री। तो जो न्यू रिसर्चर है वो फर्स्ट सिनोप्सिस जमा करेंगे, तो वो शोध गंगोत्री प्लेटफॉर्म में जाकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो सर्च करते हैं कि कैसे सिनोप्सिस प्रिपेयर करना है, ओके, रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनको गाइडलाइंस मिल जाता है। और जो शोध गंगा है, यूनिवर्सिटीज में जो स्कॉलर्स है, PhD स्कॉलर्स, वो जो थेसिस सबमिट करते हैं उसका डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर करता है शोध गंगा। तो उसमें जो इसमें देखिए, जर्नल असेस ओनली, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग रिसर्च सिनोप्सिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
which consortium was formed by merging UGC Infonet, Digital Library Consortium, NLIST and Indus ICT में बताया था। जो कंसोर्टियम होता है वो एक इंस्टीट्यूशंस का पार्टनरशिप होता है। इट इज द पार्टनरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों को मर्ज यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST एंड जो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओके फॉर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी AICT कंसोर्टियम, ये तीनों को मर्ज करके जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो ई शोध सिंधु। ठीक है, ई शोध सिंधु। तो एक है यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, और NLIST में बोला था, जो NLIST है वो नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, उसका फुल फॉर्म में बता चुका हूं। और जो इंडेस्ट है वो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, AICT तो जानते हो, ऑल इंडिया काउंसिल, इट मीन्स फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, which platform provides a collaborative environment for school education where resources are often shared under Creative Commons licenses में बताया था। ये NROER, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ये बेसिकली जो क्लासेस स्टैंडर्ड 1 to 12 तक जो NCERT करिकुलम है उसी रिलेटेड का रिसोर्सेस इसमें अवेलेबल होता है। और जो इसमें एक्चुअली कोलाबोरेटिवली जैसे जो एक्सपर्ट्स है, एकेडमिक एक्सपर्ट्स है, कंसर्न इंस्टीट्यूशन है, ओके, टीचर्स है, वो क्या करते हैं, रिसोर्स एक्चुअली शेयर करते हैं। ओके, तो रिसोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका रिसोर्सेस को डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है और उसको बेसिकली स्टैंडर्ड 1 to 12 स्टूडेंट्स को अवेलेबल किया जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ए कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट फॉर स्कूल एजुकेशन वेयर रिसोर्सेस आर ऑफन शेयर्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, इट इज NROER। तो जो रिसोर्सेस है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एकेडमिशियन, एक्सपर्ट्स, कंसर्न इंस्टीट्यूशन, उनका रिसोर्सेस जाकर इस प्लेटफॉर्म में स्टोर होता है, तो फिर उसको वो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्पेसिफिक कंटेंट टाइप इज द हॉलमार्क ऑफ द शोध गंगा रिपोजिटोरी। शोध गंगा में बताया था कि जो PhD स्कॉलर का थेसिस है वो जब यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक थेसिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंटेंडेड स्कोप ऑफ निष्ठाज कवरेज विद इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ट्रेनिंग, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, K-12 टीचर ट्रेनिंग। ऑप्शन डी, के मीन्स काइंडरगार्टन। देखिए, जो प्री प्राइमरी 2 up to 12 स्टैंडर्ड टीचर्स। ओके, तो आपको याद रखना है के मीन्स एक्चुअली जो इट मीन्स प्री प्राइमरी। ओके, प्री प्राइमरी टू 12 जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर्स को ट्रेनिंग मिलता है। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट एरियाज में ट्रेनिंग मिलता है, तो वही निष्ठा का कवरेज है, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, which of these portals provides an anti-plagiarism service to Indian universities under the शोध सुधि initiative। तो इसमें ऑप्शन PDS थ्रू इनफ्लिबनेट, रिसोर्सेज थ्रू NROER, कोर्स वेयर थ्रू NPTEL, डिजिटल फाइल्स वाया NDLI। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं बताया था
जो शोध सुधी प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटिव है, इसमें जो प्लागियरिज्म, ये जो पीडीएस है, प्लागियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ओके, थ्रू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसको डिजाइन डेवलप किया है शोध सुधी को। उसमें क्या है, जो प्लागियरिज्म को रोकने के लिए, जो प्लागियरिज्म का मतलब है किसी का असाइनमेंट को फॉलो करना, किसका नोट्स को इमिटेट करना, कॉपी कर देना, इसका पब्लिकेशंस को कॉपी कर देना, वो नहीं होगा। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उस जो है पीडीएस वही है, जो प्लागियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर का नाम भी मैं बता चुका हूँ। ओके, पहले आप देख लीजिए, जब आप देख रहे हो शोध सुधी, तो थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होगा, इंटीग्रिटी मेंटेन होगा, कोई किसी का असाइनमेंट, पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 स्टेटमेंट्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन डिजिटल इनिशिएटिव्स। हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। निष्ठा इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। फर्स्ट वन करेक्ट वन। सेकेंड वन, NROER National Repository of Open Educational Resources provides digital resources primarily focused on higher education, research publications and peer reviewed journal databases। ये गलत है, क्योंकि NROER स्पेशली फॉर द स्कूल चिल्ड्रन स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12 जो NCERT करिकुला है, उसका जो रिसोर्सेस है डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सब, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। NROER का डिटेल्स में बता चुका हूँ, और एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें टीचर्स, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिशियन, एक्सपर्ट्स, वो उनका रिसोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, NROER में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे उनका रिसोर्सेज, और इट मींस थ्रू ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। बेसिकली NCERT जो करिकुलम है स्टैंडर्ड 1 टू 12, उसका जो करिकुलम रिलेटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है NROER में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। 2 स्टेटमेंट्स गिवन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग academic repositories maintained by InfluNet, Information and Library Network. Sodh Ganga is a digital repository for full text Indian MPhil और PhD dissertations and thesis submitted to universities। ये ठीक है, क्योंकि जो PhD स्टूडेंट्स, उनका जो थेसिस है, जो डिसर्टेशंस है, वो जो सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और जो न्यू रिसर्चर्स है, ओके, वो उसको फॉलो करते हैं। ओके, क्या थेसिस का गाइडलाइंस है, तो इट मीन्स कैसे एक्चुअली थेसिस एक प्रेजेंट किया जाएगा, क्या उसका मेथोडोलॉजी है, ठीक है, वो मिल जाता है। शोध गंगोत्री इज ए रिपोजिटोरी कंटेनिंग अप्रूव्ड सिनोप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स फॉर PhD रजिस्ट्रेशन। तो मैं दोनों के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। तो शोध गंगा वो थेसिस को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, और शोध गंगोत्री वो जो रिसर्च प्रपोजल्स है, जो सिनोप्सिस है, उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको डिटेक्ट करना है। शोध सुधी इज ए प्लागियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव प्रोवाइडेड टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया टू एंश्योर एकेडमिक इंटीग्रिटी। ये करेक्ट है। eSodh Sindhu provides access to high quality electronic resources including full text e-journals and e-bibliographic databases to higher education institutions at subsidized subscription rates। दोनों करेक्ट है, तो बोथ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। Vidwan is a database of profiles of scientists, researchers and faculty members working at leading academic institutions and R&D organizations in India। ये करेक्ट है। जो विद्वान पोर्टल है वो डाटाबेस वो रखता है, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स है, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ लीडिंग इंस्टीट्यूशंस
उनका प्रोफाइल मिल जाएगा, जो रिसर्चर का, साइंटिस्ट का, और उनका पब्लिकेशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो वो विद्वान पोर्टल में करेक्ट है। NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड बाय IIT खड़गपुर एक्ट्स एज ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी फॉर एजुकेशनल असेट्स स्पानिंग ऑल एकेडमिक लेवल्स एंड सब्जेक्ट्स, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। मगर इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों करेक्ट है, वो इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following platforms is a widely used learning management system that provides an open source e-learning solution? मैं आपको बताया था जो LMS के ऊपर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसका वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके, वो एक्चुअली जो लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज को मैनेज करता है। ओके, कैसे, सपोज ऑनलाइन क्लास आप कैसे लेंगे, और आप जब टीचर्स क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो जो हेड है, प्रिंसिपल है, वो कैसे मॉनिटर करेंगे। ओके, और टीचिंग को कैसे एवेलुएट किया जाएगा। तो ये सब ऑनलाइन जो LMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से कैसे ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा, हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन क्विजेस, हाउ टू कंडक्ट सपोज प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन, how to conduct examination through online, how to conduct online assessment. When the teachers are teaching classes, then how can the head of the school actually monitor that class? Okay, how can the principal actually assess the teachers when the teachers they are taking online classes? ठीक है, तो ये जो which of the following platform एक मॉडल है, इसको याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक LMS है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च द कोर्स साइंस मैटर्स? कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कोर्स साइंस मैटर्स? इट इज मूक, स्वयं, कोर्सेरा, उडेमी। इट इज कोर्सेरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्वयं कोर्सेस? ओके, स्वयं कोर्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए कितना, हाउ मेनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आर देयर टू एंश्योर द, क्योंकि स्वयं जो है वो मैसिव, जो मूक सम बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो स्वयं प्लेटफॉर्म है। स्कूल एजुकेशन 9 to 12 आता है, देन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, it means for any other higher studies. Okay, professionals, okay, for lifelong learning, इसमें online it means courses, many video lectures, assessments, notebooks, many things मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें हाउ मेनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स? 9 कोऑर्डिनेटर्स है। ओके, उसका क्वालिटी जो ऑनलाइन कंटेंट है, जो थ्रू ऑनलाइन एक्चुअली जो मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, उसका क्वालिटी क्या है, इसको क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए 9 एक्चुअली नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है। ओके, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का नाम देख लीजिए। ओके, AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्पेस एंड इंटरनेशनल कोर्सेस। NPTEL है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, वो इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्निकल स्ट्रीम्स को का क्वालिटी को चेक करता है। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन का मटेरियल है उसका क्वालिटी को चेक करता है। NCERT, स्कूल एजुकेशन क्लासेस 9 to 12, उसका जो ऑनलाइन मटेरियल है उसको चेक करता है। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड ओपन स्कूलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को वो क्वालिटी को चेक करता है। IGNOU है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड आउट ऑफ स्कूल लर्निंग, उसका रिलेटेड मटेरियल्स को वो क्वालिटी को चेक करता है। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, मैनेजमेंट स्टडीज का जो रिलेटेड मटेरियल है उसको वो क्वालिटी को चेक करता है। और नेक्स्ट वन, NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वो देखता है कि टीचर्स ट्रेनिंग एंड पेडागोजी डेवलपमेंट। तो ये जो 9 कोऑर्डिनेटर्स है, जो ऑनलाइन कंटेंट्स है
उसका क्या क्वालिटी है, वो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स उसको इंश्योर करते हैं कि क्वालिटेटिव कंटेंट है, वो चेक करते हैं। तो दीज आर द 9 कोऑर्डिनेटर्स, दे चेक द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एक्चुअली, इट मीन्स ऑन स्वयं पोर्टल। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट था। आप वेट कीजिए, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर मैं जो भी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरा अपकमिंग पार्ट्स में मिलेगा। तो यदि कुछ एरिया में सपोज कुछ पार्ट में suppose now I am in out of station and involved in other works, but still then for your benefit I made this video. सपोज कुछ ऐसा आपको डिटेक्ट हुआ कि कुछ एरिया में आप कुछ लैकुना डिसएडवांटेज डिटेक्ट किया, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, सो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।